Good morning, student. Integral class 12, chapter 7, exercise 7.3. And this exercise is specially based on integration using trigonometric identities. In short form, we write ITI, that is integration using trigonometric identities. And in last video, we did till question number 30. Today we will do question number 14. So let integrate cos x minus of sin x whole upon 1 plus sin 2x dx. So we will start the question. 1 plus sin 2x in numerator sine and cosine function in angle x and denominator sin 2x. So first we will use the identity cos x minus sin x as it is. Denominator में 1 को लिख सकते हैं अपन sin square x plus cos square x plus sin 2x को sin 2 theta का फॉर्मूला 2 sin x cos x dx. Now integral cos of x minus of sin x whole upon this will be sin x plus cos x whole square whole dx. So now by substitution let sin x plus cos x को अगर मैं t मानता हूँ तो sin x का डेरिवेटिव cos x है और cos x का माइनस sin x है. dx will be equals to dt. So by substitution integral I is equals to sin x plus cos x को t माना तब cos x minus sin x dx dt तो 1 upon t square dt. t square का 1 upon t square का इंटीग्रल implies that I is equals to t की पावर -2 तो t की पावर -2 plus 1 upon -2 plus 1 plus of c. So final integral हो जाएगा इसका -1 upon t plus of c. t की जगह फिर से वैल्यू पुट अप कर दे क्या sin x plus cos x. So 1 upon sin x plus cos x plus of c is your answer. Now next, this was the question number 14. Now question number 15. Question number 15, integrate tan cube 2x into sec 2x dx. That's a very important question. Exam point of view से सबसे पहले अपन क्या करेंगे, tan cube को इन पार्ट्स करेंगे. tan square 2x into tan 2x into sec 2x dx. Now tan square is not directly integrable, so we will use 1 plus tan square is equals to sec square. So it will be sec square 2x minus 1 into tan 2x into sec 2x dx. Now sec square को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. So integration of sec square 2x into tan 2x into sec 2x or minus of integration tan 2x into sec 2x dx. ओके. नाउ यहाँ पर sec 2x को अगर t मानता हूँ क्योंकि sec x का डेरिवेटिव sec x tan x होता है. सो dx माइनस और यहाँ पर डायरेक्टली tan x sec x किसका डेरिवेटिव है, sec x का. तो यहाँ पर तो क्या करेंगे, ये तो आपका बाई सब्स्टिट्यूशन होगा तो इंटीग्रल I इज इक्वल्स टू इसको I1 मान ले और इसको अपन I2 मान ले ताकि सेपरेटली इंटीग्रेट अपन कर पाएंगे. सो इन I1 लेट sec 2x को अपन अगर t मानते हैं तो sec x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec x का sec 2x into tan 2x and dx is equals to dt by 2 because 2x का डेरिवेटिव 2 होगा तो यहाँ मल्टीप्लाई उसको अपन ने राइट में डिराइव कर दिया. तो जैसे ही sec 2x को मैं t मानता हूँ तो tan 2x into sec 2x dx बराबर dt by 2. तो ये हो गया फाइनल सब्स्टिट्यूशन से I1 किसके बराबर आएगा 1/2 t square dt.
it will be equals to I1 is equals to 1 upon 2 t cube by 3 plus of c. So 1 by 2 t की जगह वैल्यू पुट अप करेंगे sec 2x, तो sec 2x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस ऑफ c. नाउ सिमिलरली यहाँ I2 का जो इंटीग्रल होगा I2 will be equals to integral of tan 2x into sec 2x dx. This is tan 2x sec 2x किसका डेरिवेटिव है? sec 2x का. तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, इसका इंटीग्रल हो गया I2 बराबर sec 2x और 2x का क्या होगा 2. So 2x का 2 को अपन नीचे डिवाइड कर देंगे प्लस ऑफ c. नाउ दिस इज I2 एंड दिस इज योर I1 एंड I2 को आप ऐड करके रिजल्टेंट में लिखेंगे. दैट्स योर आंसर. सो प्लीज पॉज द वीडियो इन ऑर्डर. इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ओके, ये आर्टिकल चल रहा है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उनको बार बार आप रिवाइज करें, बिकॉज जनरली स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को लीव आउट कर देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. इंटीग्रेशन 10 की पावर 4 x dx. सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 10 की पावर 4 को 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x dx लिखेंगे. अब अपन क्या करेंगे, एक 10 स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1, तो अपन ने फर्स्ट 10 स्क्वायर x एडिट लिखा, सेकंड sec स्क्वायर x माइनस 1 dx. अंदर मल्टीप्लाई करें तो 10 स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x dx. देखिए 10x का डेरिवेटिव क्या होगा, 10x sec x का डेरिवेटिव sec x tan x. तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 10 स्क्वायर x को चेंज कर देंगे और देखिए 10 स्क्वायर x को तो एज इट इज रखा, sec स्क्वायर x भी एज इट इज रखा, माइनस 10 स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस 1, तो sec स्क्वायर x माइनस 1 dx करते हैं. अब ये आपका I1 है और ये आपका I2 है. इंटीग्रल I इज इक्वल टू, फर्स्ट में बाय सब्स्टिट्यूशन अपन देखो सेपरेट कर देते हैं, वेयर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx. तो इस 10x को लेट 10x को अपन t मानते हैं, तो sec स्क्वायर x dx किसके बराबर हो जाएगा, dt. सो बाय सब्स्टिट्यूशन I1 इज इक्वल टू t स्क्वायर dt. t स्क्वायर का t क्यूब बाई 3, t की जगह वापस वैल्यू पुट अप कर दें, तो 10 ऑफ x अपॉन 10 क्यूब x अपॉन 3. एंड सिमिलरली I2 किसके बराबर होगा, I2 आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x माइनस 1 dx. sec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव है, 10x का माइनस x प्लस ऑफ c. नाउ रिजल्टेंट विल बी इक्वल्स टू I बराबर इंप्लाइज दैट. सबसे पहले अपन क्या करेंगे, I1 कितना था आपका, I1 है आपका 10 क्यूब x अपॉन 3 और माइनस ऑफ 10x प्लस ऑफ x प्लस ऑफ c. दैट्स योर आंसर. प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन. गुड क्वेश्चन. sin की पावर 4x, cos की पावर 4x एंड थर्ड वन इज 10 की पावर 4x. sin की पावर 4x, cos की पावर 4x अपन ने लास्ट वीडियो में किए थे. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ. Then 17 sin cube x integral. Question number 17. Integral sin cube x plus cos cube x whole upon sin square x into cos square. Very simple question. Sin square x into cos square x dx. Denominator में आपका प्रोडक्ट फॉर्म है, न्यूमरेटर में 2 टर्म है. So first we will separate. तो इंटीग्रल I is equals to first sin cube x
whole upon sin square x into cos square x dx plus integral cos cube x upon sin square x into cos square x dx। देखिए यहाँ स्क्वायर से क्यूब कैंसिल होगा, यहाँ क्यूब से cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। नाउ sin x अपॉन cos स्क्वायर, एक डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर को cos x into cos x लिखेंगे तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sin x अपॉन cos x, वो tan x हो जाएगा और 1 अपॉन cos x बचेगा, उसको लिख दूंगा अपन sec x dx प्लस ऑफ इंटीग्रल। देखो cos अपॉन sin तो एक तो आपका cot x हो गया, एक हो गया आपका 1 अपॉन sin x दैट इज cosec x dx। अब देखो sin x tan x sec x tan x किसका डेरिवेटिव, sec x का, तो इसका इंटीग्रल तो डायरेक्ट sec x हो गया और cot x cosec x किसका डेरिवेटिव है, माइनस cot x का, तो ये माइनस ऑफ cot x प्लस c, तो sec x माइनस cot x प्लस c इज योर फाइनल इंटीग्रल। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 18 is cos 2x integrate cos 2x plus 2 sin square x 2 sin square x whole upon cos square x। So what we will do in numerator, one is cos 2 theta and second is 2 sin square theta। तो cos 2 theta को sin 2 theta की टर्म में लिखूंगा तो cos 2 theta बराबर 1 minus 2 sin square x plus 2 sin square x whole upon cos square x। ये minus 2 plus 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इंटीग्रेंट क्या बचा आपका 1 अपॉन cos स्क्वायर, 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव है, tan x का, तो tan x plus c is your answer। That's very simple question। So please pause the video, note down। Now next question number 19, that's very simple question again। 1 upon question number 19 integrate 1 upon sin x into cos cube x dx। इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी cos x से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर भी cos x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर में cos x अपॉन sin x, ये तो आपका cot x हो गया और ये हो जाएगा आपका cos की पावर 4x, cos क्यूब इनटू cos, इसको लिख दूंगा मैं sec की पावर 4x dx। अब देखो ये जो cot x है इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ऊपर तो लिखूंगा मैं sec स्क्वायर x इनटू sec स्क्वायर x और डिनोमिनेटर में cot x को लिख दूंगा मैं tan x। cot x को क्या लिख दूंगा मैं, cot x 1 upon tan x के बराबर होता है। आप देखिए अब क्या होगा कि इनमें से किसी एक को, देखिए एक sec स्क्वायर x को तो मैं एज इट इज रखूंगा, एक sec स्क्वायर x को लिख दूंगा मैं 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन tan x हो गया और ये dx। नाउ लेट tan x को अगर मैं t मानता हूं तो tan x का डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर x dx बराबर dt। तो जैसे ही मैं इस tan x को और इस tan x को t मानूंगा, ये sec स्क्वायर x dx dt हो गया। सो फाइनल इंटीग्रल देखो sec स्क्वायर x dx तो dt हो गया और जहां-जहां tan x है t, तो 1 प्लस t स्क्वायर अपॉन t dt। ठीक है, t को सेपरेट कर दे टर्म, तो इंटीग्रल i बराबर 1 अपॉन t dt प्लस इंटीग्रल t स्क्वायर अपॉन t dt। तो 1 अपॉन t i बराबर log एब्सोल्यूट t प्लस t स्क्वायर अपॉन t का t स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ c, t की जगह फिर से वैल्यू पुट अप कर दे, तो i बराबर log 10x प्लस ऑफ 10 स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस ऑफ c। दैट्स योर आंसर। सो प्लीज पॉज द वीडियो and note down।
So that again good question. Now question number 20. 20th question is cos 2x upon cos x plus sin x. Question number 20, integration cos 2x upon cos x plus sin x whole square whole dx. देखिए सिंपल cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज लेते हैं, दैट इज cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x. बेसिक का डिनोमिनेटर में cos x प्लस sin x होल स्क्वायर आपका ऐसे जैसे. अब देखो न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी यूज लूंगा, तो न्यूमरेटर में क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो cos x प्लस sin x इनटू cos x माइनस ऑफ sin x होल अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, एक पावर से ये कट जाएगा. अब देखिए डिनोमिनेटर को अपन क्या t मानते हैं, तो cos x प्लस sin x को अगर मैं t मानता हूं तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x है और sin x का आपका cos x है, dx किसके बराबर हो गया dt के. तो ये cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x dx dt हो गया. तो फाइनली इंटीग्रल I is equals to 1 upon t dt, that is इंटीग्रल बराबर log एब्सोल्यूट t प्लस ऑफ c. तो I बराबर log ऑफ एब्सोल्यूट t की जगह क्या पुट करूंगा sin x प्लस cos x प्लस ऑफ c. That's your answer. Then question number 21. Again very simple question. Question number 21. Integral I is equals to sin inverse cos x. देखिए sin inverse cos x किसके बराबर होगा, अपन जानते हैं बेसिक आइडेंटिटी sin inverse x plus cos inverse x is equals to pi by 2. So sin inverse x किसके बराबर होगा, sin inverse x will be pi by 2 minus cos inverse of x. So sin inverse इसको अपन ने x माना, तो इंटीग्रल I बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ऑफ cos इनवर्स ऑफ x की जगह क्या है cos x है. सो cos इनवर्स ऑफ माइनस cos इनवर्स ऑफ cos x. ओके, सो cos इनवर्स ऑफ cos x किसके बराबर हो x के, तो इंटीग्रल I बराबर पाई बाई 2 माइनस x dx. अब देखिए पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल पाई बाई 2 का इंटीग्रल पाई बाई 2x माइनस x का x स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ c. दैट्स योर आंसर. सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन. Now question number 22, that's very important question. Question number 22, integrate 1 upon cos x minus a into cos of x minus b dx. क्या करेंगे, इसको अपन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sin b माइनस a से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. सो डिनोमिनेटर में cos ऑफ x माइनस a इनटू cos ऑफ x माइनस b और न्यूमरेटर में sin ऑफ b माइनस a. b माइनस a को अपन क्या लिख सकते हैं, b माइनस a को हम लिख सकते हैं b माइनस a को हम क्या लिख सकते हैं x माइनस ऑफ a माइनस ऑफ x माइनस b. इस तरीके से लिख सकते हैं. देखो इसको x माइनस a माइनस ऑफ x माइनस b को ओपन करेंगे तो b माइनस a होगा. अब sin a माइनस b का फॉर्मूला ओपन कर दे तो 1 अपॉन sin b माइनस a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. न्यूमरेटर में sin a cos b
माइनस ऑफ cos A into sin of B, x माइनस बी। डिनोमिनेटर में आप सेपरेट कर दे इसको, तो cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी, और यहाँ पे भी cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी होल dx। आप देखिए जो सिमिलर टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए cos x माइनस बी से cos x माइनस बी और cos x माइनस ए से cos x माइनस ए, तो 1 अपॉन sin b माइनस a एज इट इज है। इंटीग्रल sin अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan ऑफ x माइनस a dx हो गया, माइनस 1 अपॉन sin b माइनस a एज इट इज इंटीग्रल और sin अपॉन cos, ये tan ऑफ x माइनस b हो गया। नाउ सिंपल tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव होता है माइनस log cos x, तो माइनस ऑफ 1 अपॉन sin b माइनस a, तो आपका एज इट इज है log ऑफ cos ऑफ x माइनस a, और यहाँ पे माइनस 1 अपॉन sin b माइनस a आपका एज इट इज है माइनस माइनस प्लस log of cos x minus b plus of c. This is your answer. Please pause the video. Now down.